Hello and welcome to Famhealth. This year, World Heart Day's mission is to use the power of digital health to improve awareness, prevention, and management of CVD globally and to continue using heart to beat CVD. Use heart to connect. It's about using your knowledge, compassion, and influence to make sure your loved ones and the communities you're part of have the best chance to live heart healthy lives. Today on the show, we talk about how to manage this and make people more aware, especially in the light of the recent pandemic. We have with us to talk about this today super specialist Dr. Shirish Hiremath, who's the director, Cath Lab, Ruby Hall, Pune, India. He's been the president of the CSI in 2017. He's the program chair, CSI Conference 2016. Among many other accomplishments, Dr. Hiremath started by laying down a strong foundation of cardiology in Joshi Hospital, Erenvane. Ruby Hall is where he commenced his cath lab work and is the director of the cath lab here for many years now. Welcome to Famhealth, Dr. Hiremath. So here again, we are standing here again after a year, Dr. Hiremath, to talk about World Heart Day. And however, much has changed since last year. The pandemic took place, the second wave took place, and it has given a jolt to us in many respects. And I think related to the heart, it has especially made people more aware and more conscious. In the light of that, Dr. Hiremath, I would like for you to first give your message today on World Heart Day to all the people who are watching. I think heart disease is a part and parcel of Indian culture. The Indians get it young, which is a bigger worry compared to a Westerner. And the important issue is if we are careful, you can prevent getting heart problems or at least delay the first episode. Even if you delay the episode from 50 to 75, I think we have achieved a lot. So this is what I feel on this World Heart Day. डॉक्टर हिरामत, हार्ट अटैक के क्या कारण होते हैं और अगर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसके आसपास इमीडिएट लोगों को क्या क्या करना चाहिए टू मैनेज इट? Heart attack, as everybody knows, happens because of clot formation. So there are vessels which take blood to the pumping chambers of the heart, and slowly over a length of time, the cholesterol deposition happens and keeps growing and narrows the vessel, which takes blood to the heart. Now, this narrowing, patient may realize that when he walks or walks fast, he gets fullness in the chest, which forces him to stop, take a pause, and then again he's able to continue. So after a decent effort, if somebody is getting fullness in the chest, which was not there, and it forces him to stop, I think we should get heart as a possibility. So when there is a narrowing, this is how patient presents. However, suddenly somebody may get chest pain. This is because on the dome of cholesterol narrowing, a crack develops. On that crack, the cells go and stick. And that's how narrowing, which is 90%, quickly becomes 100%. This can happen in a few seconds. And that's why somebody is sitting watching a movie, suddenly starts shouting with chest pain. And then we say, oh, he's got a heart attack. So it's a combination of cholesterol plus clots of the cell, which happens. And the clot happens quickly within few seconds. And that's why somebody who is healthy, looking good, suddenly gets into a heart attack. अगर पैंडेमिक की भी बात करें, हम हार्ट अटैक को ही लेके थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए. This particular pandemic, COVID, the virus has a specific link to clot formation. And जो लोगों को blockage नहीं है, उनको भी clot आ सकती है. And that's why suddenly the number of cases having clots in the heart, lungs, suddenly increased, and we were treating all these patients with clot dissolving medicine. So important is to diagnose first quickly, give some immediate therapy, which is generally intravenous. So injection के साथ वो दी जाएगी, और उसके बाद similar purpose is served by tablets.
So you switch from injection to tablet, which are taken at home for a length of few weeks, and that is how the clots can be completely dissolved and new clots can be prevented from forming again. डॉक्टर हिरामत, यहाँ पे फैमिली का क्या रोल हो सकता है कि अगर हार्ट अटैक आ रहा है पेशेंट को, जितने टाइम तक आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कैन दे डू समथिंग? उनसे अगर कुछ हो पाता है, व्हाट शुड दे बी डूइंग? Actually, whenever somebody gets a heart attack, its time is very crucial. The initial hour is called as a golden hour because if you treat that patient effectively in the first 1 hour, you save heart from getting damaged permanently. Otherwise, clot formation on top of cholesterol and total block, if it remains for a few hours, say 8 hours, patient sleeps overnight and comes next morning. Those 8 hours, the heart can get heavily damaged. So, जिम्मेदारी इसमें है कि हम हार्ट अटैक को पहले पहचान लें. Important to remember that the clot dissolving medicine given in first 4 hours have very effective penetration. They will dissolve the clot, and some flow is established, and that's how heart damage is saved. एक बार हार्ट को परमानेंट डैमेज हो गया, मसल जो जोर से कॉन्ट्रैक्शन देता है वो डैमेज परमानेंट हो गया, तो फिर बाद में उसको नॉर्मल करना बहुत मुश्किल रहता है. इसके लिए ट्रीटमेंट जल्दी होनी मांगती है और इफेक्टिव होनी मांगती है. Okay, so quick intervention is the key for a heart attack. अगर अब इसके बाद हम चले, ड्यूरिंग कोविड काफ़ी सारी इंटरवेंशंस वगैरह रोक दी गई थी क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो गया था. इन द लाइट ऑफ दिस, डॉक्टर हिरमत, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसे जो प्रोसीजर्स हैं, पहले तो हमें बताइए कि ये क्या होते हैं, किस लिए किए जाते हैं और इनका कोविड से रिलेटेड क्या परिणाम हुआ? एक्चुअली जो लोगों को हार्ट के सिम्टम्स है, हार्ट के टिपिकल सिम्टम्स इज, आप जब चलते हैं तो छाती में हेवीनेस आता है, सेंटर में ऐसा हेवी लगता है, कुछ तो पत्थर रखा है. पेशेंट का ये डिस्क्रिप्शन मैं देता हूँ कि ऐसा चलने के बाद लोग बोलते हैं किसी ने छाती पे पत्थर रखा है, ऐसा लगता है, उसको निकाल दे, बाजू को रखे, फिर हम चल सकते हैं, नहीं तो चल ही नहीं सकते, रुकना पड़ता है. ये पेशेंट की जुबान है. और कभी कभी ये चेस्ट पेन जो बीच में होती है सेंटर में, वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाती है और लेफ्ट हैंड को रेडिएट करती है. ये दोनों अगर साथ में आ गया, चेस्ट पेन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट हैंड, आई थिंक पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू अ ब्लॉकेज इज ऑलमोस्ट सर्टेन. और इस स्टेज में जल्दी से जल्दी ईसीजी निकालना जरूरी है. That's why we have to save time. So, moment you suspect, you rush the patient to a place where an ECG is possible. If he shows something, I think we need a next clot dissolving treatment, which we discussed. Clot dissolving treatment में intravenous injection देते हैं जो strong रहते हैं, जिससे क्लॉट डिजॉल्व होती है और ब्लड सप्लाई कुछ हिस्से में एटलीस्ट चालू हो जाती है. जो जो हार्ट में बच जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेशेंट्स फ्यूचर, जिससे पेशेंट को बाद में चलने में से दम लगना, सीढ़ी चढ़ने को नहीं आता, एक जगह बैठ के रहना पड़ता है, ये सब वीक हार्ट की जो तकलीफें हैं वो निकल आएंगी नहीं हार्ट अटैक के बाद. तो इसके लिए ट्रीटमेंट जल्दी और अच्छी होनी जरूरी है और वो शुरू में होनी चाहिए. डॉक्टर हिरामत, एंड स्टेंटिंग पीसीआई किस तरीके से आजकल किया जाता है और क्यों किया जाता है? एक्चुअली एंजियोग्राफी पहले होनी जरूरी है. जो हार्ट अटैक में है उनको इमरजेंसी होनी जरूरी है. और जो लोग चलने से मुझको छाती में दुखता है, दर्द होता है, रुकना पड़ता है, ऊपर चढ़ान पे नहीं चढ़ सकते, सीढ़ी पे नहीं जा सकते, ऐसी जिनकी कंप्लेन है उनको भी हार्ट के लिए टेस्ट करनी जरूरी रहती है. एंजियोग्राफी इज द अल्टीमेट, इट्स 100% टेस्ट विच टेल्स अस कि बाबा ये हार्ट की ब्लॉकेज की वजह से ये पेशेंट को तकलीफ हो रही है.
तो एंजियोग्राफी में रेडियल आर्टरी यानी हार्ट की ये लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की बस ट्यूब रहती है रेडियल आर्टरी, उसमें से हम छोटी नीडल रखते हैं और ये कैथेटर फिर उसमें से हार्ट की तरफ जाता है और हार्ट को ब्लड सप्लाई लेके जाने वाली जो ट्यूब्स रहती है उनको हम फिल्म पे रखते हैं और उसकी मूवी निकालते हैं, वो सीडी पे आ जाती है और सीडी हम शेयर कर सकते हैं, पेशेंट को दिखा सकते हैं, फैमिली को दिखा सकते हैं। तो एक 15 मिनट की टेस्ट रहेगी जिसमें टाका लेना, कट करना, ऐसी चीजें नहीं रहती, ये परक्यूटेनियसली जाते हैं। जब एंजियोग्राफी निकल जाती हो जाती है तब ये छोटी ट्यूब हम निकाल देते हैं, हाथ को दबा लेते हैं, एक पट्टी लगा देते हैं और एक 6-8 घंटे के बाद वो पट्टी निकाल सकते हैं। तो एंजियोग्राफी, लोगों के दिल में बहुत डर रहता है एंजियोग्राफी के बारे में, बट हार्ट की पूरी जानकारी जानने में एंजियोग्राफी की बहुत मदद होती है। उसके आगे की टेस्ट अभी तक तो पैदा नहीं हुई, लेकिन angiography is the most reliable test and we can base all our future decisions about a case based on angiography. जनरली कैसा रहता है कि हार्ट अटैक किसी को आ गया तो हम क्लॉट डिजोल्विंग मेडिसिन देती है, उसकी सक्सेस चांस अबाउट 80-85% तक रहती है, यानी even in small villages this injection can be given and you can get an 85% immediate success. So this step is very important. तो ये सक्सेस चांस 80-85% रहता है। क्लॉट निकल गई, लेकिन क्लॉट निकलने के बाद भी जो कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज रहता है वो कितना है वो जानना जरूरी। तो एंजियोग्राफी इज टू फॉलो। तुमने आज क्लॉट डिसॉल्विंग की दवा दी तो एंजियोग्राफी कल या परसों करना जरूरी रहती है और उसमें फिर ब्लॉकेज कितना पीछे रह गया है वो समझ सकते। हार्ट अटैक जब आती है तब ब्लॉकेज 100% रहता है, लेकिन क्लॉट डिसॉल्विंग की दवा से वो 100 का 85% तक आ गया, तो 85% को कैसा हल करे, तो एंजियोप्लास्टी उधर आ जाती। तो एंजियोप्लास्टी में जो नैरोइंग रहता है उसको हम बलून छोड़ते हैं, ये कैथेटर में से ही जाता है। एंजियोग्राफी को जो कैथेटर यूज किया रहता है उसमें से वो बलून अंदर जाता है। बलून खोलने के बाद कोलेस्ट्रॉल क्लॉट दोनों पुश हो जाते हैं और इधर फिर हम स्प्रिंग ला के बिठाते हैं और स्प्रिंग बिठाने के बाद वो एरिया परमानेंटली ओपन हो रहती है बक्कम से। और आजकल जो स्टेंट आए हैं मार्केट में, दे आर मेडिकेटेड स्टेंट। मेडिकेटेड स्टेंट से लॉन्ग टर्म पेटेंसी स्टेंट की बहुत अच्छी है। तो लोगों के मन में ऐसा एक संशय रहता है कि एंजियोप्लास्टी टेम्पररी प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। जो आज हम एंजियोप्लास्टी करते हैं आज वो बरसों तक जाती है, 20 बरस, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स भी जा सकती है। ये नए ब्लॉकेज आ सकते हैं, यानी 5-10 बरस के बाद दूसरी जगह ब्लॉकेज आ सकते हैं, इसके लिए दूसरी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है। तो वी हैव टू बी केयरफुल। एक बार अटैक आया, इमीडिएट ट्रीटमेंट मिल गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, और एंजियोप्लास्टी के बाद दोबारा ब्लॉकेज नहीं आए इसके लिए ये लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो लोगों को हम कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे रखो ऐसा बोलते हैं, ये लोगों को जिनको अटैक आ गए उनके बारे में हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। उनको हम बोलते हैं तो 150 के नीचे रखो या 125 तक आ जाओ। जितना हम मेहनत करके कोलेस्ट्रॉल नीचे लाएंगे उतना इम्पोर्टेंट रहता है। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं, और शुगर जो रहती है उसको हमेशा हमेशा कंट्रोल रखना। गुड कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्लड प्रेशर भी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। पहले 160 तक, 160 के आगे हम ब्लड प्रेशर बोलते थे, आजकल 140 के नीचे, और अमेरिका में तो 130 के नीचे रखना जरूरी है ऐसा समझते हैं। तो ये सब चीजें जो है, एक बार पेशेंट अच्छा हो गया, स्टेबल हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गई और बाईपास हो गई, उसके बाद कंटिन्यू करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज एंजियोप्लास्टी हो गया मैं एक परमानेंट पूरी जिंदगी के लिए अच्छा हो गया, ऐसा नहीं। कुछ भी हार्ट की प्रोसीजर हो उसके लिए आगे की मेहनत करना बहुत जरूरी होता है।
डॉक्टर हिरमत, एक लास्ट सवाल बाईपास से रिलेटेड है, क्योंकि ये तो सबसे लास्ट एंड सीरियस प्रोसीजर माना जाता है। बाईपास के लिए हार्ट डिजीज में क्या किया जाता है और इसका कितना महत्व है हार्ट डिजीज में? Actually, bypass started many years before angioplasty. Angioplasty first was performed in 1977, and bypass was at least about 15 years earlier than angioplasty. तो बाईपास में जो ब्लॉक है उसको हम कुछ हाथ नहीं लगाते, बाईपास को हम पैरेलल एक पैसेज ज्वाइन कर देते हैं। तो पाँव से ट्यूब निकालते हैं, वेन निकालते हैं, वो एओर्टा जो हार्ट से मेन ट्यूब निकल आती है उसको स्टिच करके, और दूसरा एंड जो ब्लॉकेज है उसके आगे की हार्ट की ट्यूब को ज्वाइन कर देते हैं। तो ब्लॉकेज ऐसा ही रह गया, जब आगे बढ़ भी गया तो भी जो ट्यूब में बाईपास हो गया है उसमें से ब्लड जाता रहता है और पेशेंट को अच्छा रहता है और पेशेंट को हार्ट की तकलीफ नहीं। तो बाईपास करना भी कुछ केसेस में जहाँ एंजियोप्लास्टी नहीं हो सकती, ज्यादा करके एंजियोप्लास्टी किस में नहीं होती, ट्यूब बहुत हार्ड होगी, कैल्सिफिक होगी, तो एंजियोप्लास्टी करना थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक करके हम करते हैं। लेकिन ये इमेजिंग की जिम्मेदारी है, जब एंजियोग्राफी करते हैं तब कुछ स्पेशल इमेजिंग टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जिसमें ओसीटी है, आईवस है, जो अंदर से हम ट्यूब को झांक लेते हैं और उसके हिसाब से हम डिसीजन दे सकते हैं कि एंजियोप्लास्टी से हो सकती है या बाईपास सर्जरी से हो सकती है। दोनों हार्ट का ब्लड सप्लाई बढ़ाने का तरीका है, दोनों में। तो जहां जहां हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं उधर एंजियोप्लास्टी का प्रेफरेंस होता है, और जहां बाईपास ही करनी जरूरी है उधर बाईपास। ओके, लास्ट डॉक्टर हिरमत, बाईपास करने के बाद में कितने दिन तक और क्या-क्या सावधानी लेनी पड़ती है? एक्चुअली दिस इज अ एजिंग प्रोसेस, यानी किसी को एज 60 के बाजू बाजू में हार्ट की बीमारी आ गई और उसको एंजियोप्लास्टी कर लिया, तो आज वो अच्छा हो गया, ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो गया, लेकिन इसको आगे चल के भी ब्लड सप्लाई नॉर्मल रखना जरूरी है। दोबारा कहाँ ब्लॉकेज आना नहीं आने मांगते, इसके लिए वेट कंट्रोल, बराबर फूड, कोलेस्ट्रॉल वैल्यू जितनी नीचे ला सके उतना अच्छा, शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, वेट कंट्रोल, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिन में कुछ रेगुलरिटी मांगती है। काफी लोग बोलते हैं मैं बहुत टूरिंग करता हूँ, रात को देरी हो जाती है, सुबह देरी से उठता हूँ। Whatever it is, I think we must learn to find some time for ourselves, and physical activity should be there. तो एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, और उसके साथ अभी जो हमने प्रिवेंटिव चीजें के बारे में बात की वो भी करनी जरूरी है। डॉक्टर हिरमत, अपनी तरफ से अगर आप एक अच्छा सा मैसेज दे पाए लोगों को, स्पेशली इस दौरान जहाँ पे लोग थोड़ा डर-डर के जाते हैं, उनको ज़रूर बताना चाहिए कि डरने की कोई बात नहीं है। सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं एंड दे शुड गो इन, एंड जो भी इंटरवेंशंस है, सर्जरीज़ प्लान्ड हैं, उनको जाके समय पे करना चाहिए। अगर आप ऐसा मैसेज दे पाएँ हमारे ऑडियंस को। नहीं नहीं, वेरी ट्रू, बिकॉज हार्ट की ट्रीटमेंट टाइम पे होनी जरूरी है। आप रुक गए, डॉक्टर पे पास गए नहीं, मानो 6 महीने गए, 1 बरस गए, लेकिन वो बीमारी कहाँ तो पकड़ लेगी आपको, और अटैक आने के बाद फिर भाग दौड़ करनी पड़ती है। सो ये टालना जरूरी है। जब हम अच्छे हैं, कंप्लेन है जो हार्ट की हो सकती है, तभी इवेल्युएशन होना बहुत जरूरी है। तभी इवेल्युएशन हो गया तो हार्ट का जो पंपिंग रहता है वो अच्छा रहता है, वो आगे चल के भी अच्छा रहेगा। एक बार हार्ट अटैक के बाद आपने ये करके दिया तो हार्ट कुछ हिस्से में डैमेज हुआ रहता है, तो ये हम टाल सकते हैं। इसके लिए जो चीजें हार्ट को ब्लॉकेज देती है, यानी शुगर, ओवरवेट, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, गुस्सा करना बार बार, जो दिमाग वाली चीजें रहती है उसको हम कंट्रोल करें, और हार्ट के लिए कुछ हमेशा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी रहता है।
So every day you must do some exercise on regular. डॉक्टर हिरमत, थैंक यू सो मच। आप आए, इतना अपना टाइम हमारे साथ आपने बिताया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई है लोगों को वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे। आई थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ फैम हेल्थ एंड ऑल द ऑडियंस मेंबर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज माय फैम हेल्थ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।